Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless your holy name. King of glory, Lord Jesus Christ of Nazareth. We bless your holy name, Lord. Praise you, praise you, praise you. Bless you, praise you, give you glory, give you honor, Yahushua HaMashiach. Yahushua, we bless your blessed name. We praise your blessed name, Yahushua, Yahushua HaMashiach, King of glory. Yahushua HaMashiach, King of glory. Bless you, praise you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, I invite your presence. Father, I invite your angels. Father, I call upon the blood of Yahushua HaMashiach. Father, I draw the hedge of the blood of Jesus. As we meditate on your word, Father, hallelujah, as we meditate on your word, Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Let your spirit move. Let your spirit move upon us, Father. Hallelujah. Let your Holy Spirit move in a very, very special way, Father. Hallelujah. And you just sort of nudged me to come with this message, Lord. I thank you. Thank you, Lord. I thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Bless your holy name. Bless your holy name, Yahushua. Yahushua HaMashiach, we bless your holy name. Yahushua, Yahushua, we bless your holy name. Yahushua HaMashiach, we bless your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Bless your holy name. Bless your holy name. Bless your holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabko Jai Masih ki. Father, I pray that your Spirit will move upon this Bible study. Father, that your hand will be upon this broadcast. Father, we bless your holy name. We praise you. In Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 Actually, I was not planning for a Bible study. Just like 3-4 minutes back, the Lord spoke to my heart. प्रभु ने 2-3 मिनट पहले मुझे नज किया कि ये बातें जो मेरे मन में अभी प्रभु डाल रहा है मैं आपके साथ शेयर करूं. हालेलुया. तो मैं चाहता हूं आप बाइबल खोलें और मेरे संग चलें बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक. हालेलुया. अब मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, मैं कुछ दिन से प्रॉपर्ली ऑनलाइन नहीं आया, पीपल वर मिसिंग. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वी आर रियली मिसिंग वेरी वेरी डीप बाइबल स्टडीज़. तो 1-2 दिन से कल मीटिंग्स के लिए जा रहा हूँ, कल और परसों 2-3 जगह मीटिंग्स हैं. बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की अनुग्रह और कृपा से सभी काम बहुत रेगुलर हो जाएगा. हालेलुया. मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके लिए. हालेलुया. उत्पत्ति 3 अध्याय के 13 वचन में प्रभु यहोवा स्त्री से, ईव से, हिब्रू नेम है खबा. खबा, खयम का मतलब होता है लाइव्स. खबा, प्रोजेनिटर ऑफ लाइफ, जीवन देने वाली जननी. स्त्री से प्रभु यहोवा बात करता है. देन द लॉर्ड सेड अनटू द वुमन, व्हाट इज दिस यू हैव डन. तूने ये क्या किया. तो औरत क्या कहती है,
द वुमन सेड, द सर्पेंट बिगाइल्ड मी एंड आई एट। हवा यहोवा परमेश्वर से क्या कहती है? सृष्टि के रचयिता परमेश्वर से क्या कहती है? द सर्पेंट, नखाश। आपको मालूम हिब्रू वर्ड सांप के लिए है नखाश, और नखाश एक बड़ा डीप वर्ड है। नखाश का मतलब एक होता है शाइनिंग वन, सोने की तरह चमकने वाला, और नखाश का दूसरा मतलब होता है एन्चांटर, डिवाइनर, जादू करने वाला। तो हवा कहती है नखाश, सर्पेंट, नखाश डिसीव्ड मी। आपको मालूम डिसीव्ड और कुछ ट्रांसलेशन में लिखा बिगाइल्ड मी। तो हिब्रू वर्ड क्या है यहां पे? बिगाइल के लिए एक वर्ड प्ले है। नखाश का, सांप का नाम है नखाश, जिसका मतलब है एन्चांटर, डिवाइनर, भ्रम पैदा करने वाला। Satan is a diviner. He is an enchanter. You know what the devil does? His strategy is he creates a matrix before your eyes. He pulls another dimension before your eyes. He creates a parallel reality. You remember what the devil did to the Eve? He pulled her to the tree, and then he showed her the tree in a different light. The tree of the knowledge of evil and good. He cast a world before her eyes and he mesmerized her. और हवा को, दरख्त को, भले और बुरे के ज्ञान के ट्री को एक और रोशनी में दिखाता है शैतान। He pulled another dimension before her eyes and she sees a different reality. She doesn't see the reality of the Creator God. She sees the reality of the enchanter. Diviner जो है, enchant करने वाला, भ्रम पैदा करने वाला, जादू करने वाला जो शैतान है, उसकी रियलिटी में वो उस ट्री को देखती है, एक अलग रोशनी में देख रही है वृक्ष को। तो क्या लिखा है? ईव कहती है, ईव सेड टू द लॉर्ड, Nachash beguiled me. And there is a word play in Hebrew. You know, there are word play, there are puns, and there are different kind of word nuances in Hebrew language. तो आपको वो गहराई समझनी पड़ेगी। तो यहां पे वो कहती है deceived me, जिसके लिए हिब्रू वर्ड है नाशा। नाशा, नून शिन आलेफ, नाशा, नून शिन आलेफ। Aleph is ox, the head of an ox. Aleph का मतलब होता है अब्बा, Aleph का मतलब होता है घर की ताकत, strength. Aleph का मतलब होता है पिता, बाप, और नून का मतलब होता है सीड, पिता का सीड। लेकिन शिन होते हैं टीथ, दांत। शिन का मतलब होता है खा लेना। अब्बा के, पिता के सीड को डिवाउर कर जाना, ये काम करता है शैतान। ये सीड है। जब वो बिगाइल करता है, जब वो भ्रमित करता है, जब वो आपके माइंड से प्ले करता है, तो क्या करता है? वो यहोवा के वचन को खाता है। हालेलुया। और यहोवा के वचन के पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगाता है। डिड गॉड रियली से? क्या सचमुच में परमेश्वर ने कहा? हालेलुया। आपको मालूम, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय के 3 वचन में एक अद्भुत आयत है। 2 कुरिन्थियन 10 का 3 सुनिए। 2 कुरिन्थियन 10 के 3 में मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुने ध्यान से। 3 से नहीं, मैं एक्चुअली 4 वचन पढ़ता हूं। The weapon we fight with are not weapons of the world. The weapon of our warfare are not carnal. This is NIV. I don't appreciate NIV very much. King James में लिखा है, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। The weapon with which we fight are not carnal. On the contrary, they have divine power. परमेश्वर के हथियार जिनसे हम युद्ध लड़ते हैं वो शारीरिक नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर की ऊर्जा से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की शक्ति से भरे हुए हैं।
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है 6 अध्याय के 12 वचन से पढ़ें, मुक्ति का टोप पहनो और धार्मिकता की झिलम पहनो और सत्य से अपनी कमर को कसो और मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहनो और विश्वास की ढाल लो ताकि शैतान के अग्निबाणों को बुझा सको और विश्वास की तलवार लेके शैतान के संग युद्ध करो और हर प्रकार की प्रार्थना। Then Paul says, praying with all kind of prayers. Do you know that prayer is a weapon? And Paul talks about diverse kind of prayers. There is not only one kind of prayer. There are different kinds of prayer. The Holy Spirit of the Most High God will move you into different dimensions to pray differently as the Holy Spirit understands and perceives and gauges the mind of God fully. He will make you intercede according to the mind of God, according to the will and the purpose of God. What a beautiful ministry of the Holy Spirit that happens on the inside of a regenerated believer. Hallelujah. तो Paul says कि हम क्या करते हैं, हमारे वेपन दे आर नॉट कार्नल, शारीरिक नहीं है, शक्तिशाली है। क्या करते हैं वेपन? वेपन क्या करते हैं? कास्टिंग डाउन इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, यहां इमेजिनेशन उठती है, इमेजिनेशन जिनके लिए ग्रीक वर्ड है लॉजिस्मोस, लॉजिक, लॉजिस्मोस, every kind of intellectual rational logic that devil brings here. He intercepts your mind. He puts a thought in your mind. Then that one thought can keep you in a prison for a long long time. एक ख्याल जो आपके जहन में शैतान डालेगा, उस एक गलत ख्याल से गलत इंफॉर्मेशन आपके अंदर डालेगा और उस गलत इंफॉर्मेशन के द्वारा शैतान आपको बड़े लंबे समय तक कैद में रख सकता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जीसस सेज यू शैल नो द ट्रूथ एंड द नोइंग ऑफ द ट्रूथ, द एक्सपीरियंशियल रियलिटी ऑफ द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, विल ब्रेक द प्रिजन ऑफ द डेविल। तो आपके लॉजिस्मॉस में, इमेजिनेशन में, कास्टिंग डाउन इमेजिनेशंस, हम क्या करते हैं? कास्ट करते हैं, हालेलुया, इमेजिनेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। और लिखा एवरी हाई थिंग, एवरी हाई थिंग, हर एक ऊंचा ख्याल। और ग्रीक वर्ड है हुपासोमा। हुपासोमा मीन्स एवरी लॉफ्टी थिंग, एवरी लॉफ्टी आइडिया दैट बिविचेस यू, every philosophical thought, every intellectual kind of thing that deceives you, which is contrary to the will, which is contrary to the word of God. Every lofty thing, every kind of Eastern mysticism, every kind of philosophical thought, every kind of fleshly worship that will deceive you. हालेलुया। एवरी हाई थिंग, उसको हम क्या करते हैं? वो हाई थिंग दैट लिफ्ट्स अप, ग्रीक वर्ड है एक्सपीरो, एक्सपीरो, अपने आप को लिफ्ट करती है अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ। ये जो परमेश्वर का सच्चा ज्ञान है, इसके खिलाफ, अगेंस्ट, दिस इज द माइंड ऑफ गॉड, दिस इज द विजडम ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड, दिस इज the knowledge, the total sum of God's knowledge here, everything and anything that stands against it, इसके विरुद्ध में जो खड़ी होती है, gnosis ग्रीक वर्ड है। What we do, हम उसे गुलाम बनाते हैं मसीह का, we bring it into captivity। आपको मालूम, यहां पे एक बड़ा यूनिक ग्रीक वर्ड है, अखिल मालोफिट्जो, अखिल मालोफिट्जो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है गुलाम बनाना और जंजीरों से बांध के लेके जाना। जैसे यीशु मसीह ने कैप्टिविटी को कैप्टिव किया, बांधा उनको जब वो पताल में गया और उनको लीड करके ले गया एक प्रोसेशन में, ऐसे हम उन्हें कैप्टिव बनाते हैं। हालेलुया। हर ख्याल को, हर विचार को, हर इमेजिनेशन को जो प्रभु यीशु मसीह के वचन से मेल नहीं खाती। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नखाश ने, शैतान का नाम है नखाश, नखाश ने नाशा किया हिब्रू में। ईव कहती है, हवा कहती है,
3 अध्याय के 14 वचन में, उत्पत्ति की पुस्तक में, सांप ने मुझे धोखा दिया, वर्गलाया लिखा है, डिसीव किया इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हिब्रू वर्ड है नाशा। और सांप के लिए, सरपेंट के लिए हिब्रू वर्ड है नखाश, जिसका मतलब डिवाइनर, जादू करने वाला, जिसका मतलब है चमकने वाला, ज्योति की मानिंद चमकने वाला, और डिवाइनर, एन्चांटर। हालेलुया, उसने एंचांट किया। अब मैं एक वचन देना चाहता हूं आपको, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में आइए मेरे साथ, और उसका आप निकालिए 11th चैप्टर, 2 Corinthians दी 11th चैप्टर, दूसरा कुरिन्थियों का आप 11 अध्याय निकालें मेरे साथ। 2 Corinthians 11th चैप्टर, 11th चैप्टर, और मैं उसका आपके लिए पढ़ता हूं 3रा वचन, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3। सुने, बट आई एम अफ्रेड दैट जस्ट एज ईव वॉज डिसीव्ड। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की मंडली के लिए लिख रहा है, कहता है कि मैं भयभीत हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि जैसे ईव भरमाई गई बाय द सर्पेंट्स कनिंगनेस, जैसे हवा शैतान की धूर्तता से, हिंदी में धूर्तता लिखा है, भरमाई गई, योर माइंड में समहाउ बी लेड एस्ट्रे फ्रॉम योर सिंसियर एंड प्योर डिवोशन टू गॉड। जैसे कि हवा भरमाई गई। प्रेरित पौलुस वो बात लिखता है। आपको मालूम वचन में क्यों लिखा है कि आदम के पाप के कारण पाप जगत में आया? इसलिए लिखा है क्योंकि हवा तो भरमाई गई, नाशा हुआ। नाशा हिब्रू वर्ड है नाशा, नून शिन आलेफ। आलेफ का मतलब खुदा, नून का मतलब बीज, शिन का मतलब खा जाना। जब शैतान आपको अजमाएगा, भरमाएगा, वो एक दूसरी दुनिया आपके आगे, एक पैरेलल वर्ल्ड आपके आगे क्रिएट करेगा, आपकी आंखों को हर लेगा। जैसे कहते हैं ना, जादूगरी जो होती, हाथ की सफाई होती है, स्लाइट ऑफ हैंड्स, ऐसे करेगा। एक और वर्ल्ड, ही विल कास्ट अ वर्ल्ड बिफोर योर आईज टू डिसीव यू। तो वो यहोवा के वचन को खा जाता है। वचन में क्या लिखा है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज सड़क के किनारे गिरा और आकाश के पंछी आए। द सीड फेल बाय द वे साइड, द फाउल्स ऑफ द एयर केम एंड डिवाउर्ड द सीड। आकाश के परिंदों ने आके उस फल को खा लिया। आपको मालूम, द फाउल्स ऑफ द एयर इन द बाइबल ऑलवेज डिनोट द डीमंस, द डेवल्स, सैटेनिक स्पिरिट्स। शैतानी आत्माएं, बदरूएं आई और उस बीज को चुग के खा गई। तो हिब्रू वर्ड है नाशा, डिसीव किया, बिगाइल किया। लेकिन पॉल उसी बात को लिखता है 2 कुरिन्थियों 11:3 में कि सांप हिब्रू वर्ड है ओफस, ग्रीक वर्ड है ओफस, जिसका मतलब है मैलिशियस वन। आपका वैरी है वो, मैलिशियस, ही हैज मैलिग्नेंट थॉट्स अगेंस्ट यू। वो गरजते हुए शेर की नाई, शेर नहीं है वो, गरजते हुए शेर की नाई। वो यहूदा के बब्बर शेर की कॉपी करता है, नकल करता है। वो शेर नहीं है, वो घूमता है कि किसे फाड़ खाए। He prowls like a roaring lion seeking whom he may devour. तो ओफस ग्रीक वर्ड है सांप के लिए, और जो हिब्रू वर्ड है वह है नखाश, और वो मैलिशियस है, दुष्टता से भरा है, धूर्तता से भरा है। आपके विनाश और आपके भविष्य की बुरी योजनाएं उसके पास हैं, बुरी योजनाएं। तो डिसीव के लिए वर्ड है एक्सपटाओ, एक्सपटाओ, जिसका मतलब धोखा देना। आपको मालूम वो क्या करता है? गलतियों की कलीसिया के लिए देखिए प्रेरित पौलुस क्या लिखता है, सुनिए मेरे संग। गलतियों की पत्री निकालिए और उसका पहला अध्याय, गलतियों की पत्री निकालें जल्दी से। गलेशियंस चैप्टर नंबर 1 पहला अध्याय, उसके 6 वचन से। आई एम अस्टॉनिश्ड दैट यू आर सो क्विकली डिजर्टिंग द वन हु कॉल्ड यू टू लिव इन ग्रेस ऑफ क्राइस्ट दैट यू आर टर्निंग टू अ डिफरेंट गॉस्पेल। कहता है कि मैं हैरान हूं
कि तुम वो सुसमाचार छोड़ दिया तुमने, सच्चा सुसमाचार, और तुम झूठे सुसमाचार की ओर चल पड़े। ए डिफरेंट गॉस्पल, दूसरा सुसमाचार, विच इज रियली नो गॉस्पल एट ऑल. Evidently some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. गलतियों 1:6 से पढ़िएगा. कुछ लोग आके तुम्हें भरमा रहे हैं और एक और सुसमाचार की ओर लेके जा रहे हैं. बट इवन इफ वी और एन एंजल फ्रॉम हेवन शुड प्रीच अनदर गॉस्पल, कोई स्वर्गदूत आके भी दूसरे सुसमाचार का प्रचार करे, देन द वन वी प्रीच टू यू लेट देम बी अंडर गॉड्स कर्स. अगर वो सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार जिसका हमने प्रचार किया, कोई स्वर्गदूत भी आके करे स्वर्ग से, तो उसके ऊपर श्राप हो. प्रेरित पौलुस बता रहा है तुम दूसरे सुसमाचार पे विश्वास करते हो जो यहोवा का नहीं है, यीशु मसीह का नहीं है. तुम दूसरा आत्मा पा रहे हो, अनदर स्पिरिट. ये मसीह का रूह नहीं है जो तुम पा रहे हो, ये कोई और आत्मा है. दूसरा सुसमाचार, दूसरा आत्मा, और दिस इज अनदर क्राइस्ट. ये वो मसीह नहीं है जिसका हमने प्रचार किया. तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है गलतियों की कलीसिया से? कहता हु हैज बिविच्ड यू, यू फूलिश गलेशियंस. हे मूर्ख गलतियों, तुम्हें किसने भरमा दिया? इंग्लिश वर्ड है बिविच. मेस्मेराइज ग्रीक वर्ड है. मेस्मेराइज का मतलब होता है जब सांप के आगे सपेरा बीन बजाता है ना, तो सांप मस्त होके नाचने लगता है. इस तरह तुम मस्त हो गए किसी और धुन पे, किसी और राग पे, किसी और सुसमाचार पे, किसी और की वाणी पे, किसी और के आत्मा के जल के सोते से पीने लगे तुम, और किसी और मसीह पे तुमने विश्वास कर लिया. क्या लिखता है एक्सक्यूज मी, कुरिन्थियों की पत्री में से, दूसरा कुरिन्थियों और उसके दूसरा कुरिन्थियों के 11 अध्याय में. चलिए मेरे साथ, दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय. हालेलुया. मैं छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, रात को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता. दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 13 वचन. दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 13 वचन सुने. फॉर सच पीपल आर फॉल्स अपोस्टल्स. प्रेरित पौलुस कह रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके विषय में 11 अध्याय में प्रेरित पौलुस बात कर रहा है. पढ़िएगा 11 अध्याय घर में पूरा. उनके विषय में क्या कह रहा है? फॉर सच पीपल आर फॉल्स अपोस्टल्स. झूठे प्रेरित हैं, डिसीटफुल, धोखा देने वाले हैं, डिसीटफुल वर्कर, धोखे के भ्रम के काम करते हैं ये, मास्करेडिंग एज द अपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट. मसीह के प्रेरितों का मुखौटा पहनते हैं. मैंने आपको जो पोस्ट डाला उसमें मैंने एक मुखौटा दिखाया, मास्करेडिंग. दे मास्करेड एज द अपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट, बट दे एक्चुअली आर नॉट the apostles of Christ. They are not true apostles of Christ. They are not true prophets of Christ. They are not the true teachers of God's word. They are not true shepherds who will tend the sheep to the point of laying down their lives. वो भेड़ों के लिए जान देने वाले गडरिए नहीं हैं, बल्कि वो भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं. वो परमेश्वर की सच्चे कलाम की शिक्षा देने वाले नहीं हैं, बल्कि वो झूठे शिक्षक हैं. वो सच्चे प्रेरित नहीं हैं, बल्कि वो धोखा देने वाले फॉल्स अपोस्टल्स हैं. और क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे वर्ड है मास्करेडिंग एज द अपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट. वो मास्करेड करके, नकाब लगा के आते हैं मसीह के प्रेरित का. और आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है यहाँ पे? ग्रीक वर्ड है मेटा अश्केमेटिजो. मेटा अश्केमेटिजो. 2 ग्रीक वर्ड है, आप सुनिए ध्यान से. एक ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फिज्म. मेटामॉर्फिज्म का मतलब है एक तितली एक छोटा सा अंडा देती है. वो छोटा सा अंडा एक वृक्ष की शाखा पे होता है, काला सा इर्द गिर्द ऑयल होता है उसके. उस छोटे से अंडे में से एक छोटा सा कीड़ा निकलता है. जब वो कीड़ा निकलता है तो ऐसे लगता है कि कीड़ा पैदा हुआ, लेकिन वो प्यूपा बनता है, फिर वो लार्वा बन जाता है, फिर लार्वे के बाद वो उसकी टहनी को, पत्ते को खा के उसमें से मिट्टी पैदा करता है, और वो मिट्टी अपने इर्द गिर्द छोड़ता है, और वो कोकून में, मिट्टी के छोटे से घर में बंद हो जाता है, कोकून के अंदर.
अंदर ही अंदर मिट्टी के उस घर के अंदर परमेश्वर, सृष्टा परमेश्वर उसके पंख बनाता है, खूबसूरत उनमें रंग भरता है। उसका हार्ट, लीवर, लंग्स, छोटी छोटी आंखें बनाता है, उसकी टांगे बनाता है, उसका मुंह बनाता है, उसकी पूरी संरचना करता है। जब वो अंदर ही अंदर मिट्टी के कोकून के वो प्यूपा लार्वा डेवलप हो जाता है, उसके पंख बन जाते हैं, पाँव बन जाते हैं, टांगे बन जाती हैं, आंखें बन जाती हैं, ब्रेन बन जाता है, दिल बन जाता है, किडनी, लीवर, लंग सब कुछ बन जाते हैं। फिर जब ककून बिल्कुल ब्रिटल सा हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है, फिर वो एक दिन जब मुकम्मल हो जाता है अंदर ही अंदर मिट्टी के उस ककून में, मिट्टी का छोटा सा ऐसे एक ना घर सा बना होता है, फिर वो अपने पंख फैलाता है ऐसे करके और वो उस ककून को तोड़ देता है और खूबसूरत तितली, बटरफ्लाई उसमें से निकलती है और उड़ जाती है। ये जो प्रोसेस है ना अंडे से लेके तितली के उड़ जाने का, खूबसूरत मल्टी कलर ब्यूटीफुल तितली के उड़ जाने का, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। फिजिक्स में मेटामॉर्फिज्म का मतलब तब्दीली हो जाना, अंदर ही अंदर बदल जाना। ये है खुदा की ओर से तब्दील करना। परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है, हमें अंदर से बदलता है। गॉड विल ऑलवेज वर्क फ्रॉम इनसाइड आउट। लेट मी टेल यू द डिफरेंस। एनी फॉल्स टीचिंग, एनी फॉल्स कल्ट, एनी फॉल्स चर्च, they will try to reform you. Reformation works on the outside. They will try to make you good from the outside. But the Spirit of God will work on the inside. Every false cult, every false teaching, every false denomination, they will lay so much emphasis on reformation, making you look good on the outside. परमेश्वर पापियों को सुधारता नहीं है, परमेश्वर पापियों को क्रूस पे मार के नया जन्म देता है। यीशु मसीह पापियों को सुधारने नहीं आया, यीशु मसीह पापियों को ब्रांड न्यू लाइफ देने के लिए आया है। क्रूस की मृत्यु नए जीवन का, नए जन्म का मार्ग खोलती है। नए नियम की शिक्षा दुनिया के धर्मों की तरह लोगों को सुधारना नहीं है, रिफॉर्म करना नहीं है। इस जीवित कलाम की शिक्षा लोगों को एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू बनाना है। बाइबल में लिखा अब जो भी कोई यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, पुराना सब कुछ बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। आपको मालूम नई सृष्टि के लिए ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड है कैनोस केटिसिस। कैनोस एक बड़ा प्रोफाउंड ग्रीक वर्ड है। कैनोस का मतलब होता है समथिंग दैट इज ब्रांड न्यू। एक ऐसा प्रोडक्ट जो फैक्ट्री में से बन के निकला है, अभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया इसे, एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू है। एक्सक्यूज मी। जब यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा, यीशु मसीह आपको बाहर से सुधारेगा नहीं, यीशु मसीह आपके अंदर काम करेगा और आपके अंदर से एब्सोल्युटली नया बनाएगा। 100% ब्रांड न्यू मैन। यीशु मसीह का लहू सामरी स्त्री को धो के उतना ही पवित्र बना देता है जितनी पवित्र माता मरियम थी। God works on the inside and his transformation, which is called metamorphism, will begin to reflect on the outside. यीशु मसीह का रिक्रिएशन का, रीजनरेशन का काम अंदर होगा और बाहर दिखाई देगा। जबकि दुनिया के पंथों में, दुनिया के मार्गों में वो बंदों को बाहर से सुधारने की कोशिश करेंगे। पापी को सुधारा नहीं जाता, पापी मरता है और यीशु मसीह के लहू से नया जन्म पाता है। और जब वो नया बनता है भाइयों और बहनों, वो एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू बन जाता है। आपको मालूम शैतान ने हवा से क्या कहा? हवा से कहा द डे यू ईट द फ्रूट यू विल बी लाइक हिम। दैट्स हाउ ही इंसिनुएट्स। His job is to alienate you from your Creator. His job is to create doubt in your heart about the goodness of God. परमेश्वर भला है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर करुणामयी है, परमेश्वर आपके ऊपर जान छिड़कता है। इसके विषय में वो संदेह पैदा करना चाहता है आपके दिल में और आपको एलियनेट करके परमेश्वर से दूर करना चाहता है। आपको मालूम इंग्लिश का वर्ड गॉड, जीओडी, गॉड,
कई लोग अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। ये नहीं है गॉड का मतलब। जो गॉड वर्ड है ये जर्मैनिक सेक्सन रूट से आया है। जर्मैनिक सेक्सन रूट में जो रूट वर्ड है गॉड के लिए वो है गूट, GOOT, गूट। गूट जर्मन सेक्शन जो सिस्टर लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जो चीज एब्सोल्युटली गुड होती है, perfectly good, something that is perfectly good, something that lacks absolutely nothing, something that is absolutely pure, flawless, impeccably, spotlessly good, that is called gut. From gut the English word is come good, which means God is intrinsically good. The essence of God is good. There is no evil, there is no darkness in him. परमेश्वर भला है। God is good all the time. God is good. Hallelujah. And God is good all the time. Hallelujah. तो शैतान हवा को डिसीव कर रहा है। क्या कहता है? You will be like him. You eat the fruit, you will become like him. आपको मालूम सबसे बड़ा धोखा क्या था जो हवा ने खाया? She was already like God. Adam and Eve, they were already like God. They were created in the express image of God Almighty. आपको मालूम क्या लिखा हिब्रू में? परमेश्वर ने आदम को, हवा को अपने स्वरूप में, अपनी शक्ल और अपनी सूरत में रचा। हिब्रू वर्ड है, he created them in his image and in his likeness. इमेज के लिए हिब्रू वर्ड है जलेम, और लाइकनेस के लिए हिब्रू वर्ड है डुमूथ। आपको मालूम इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज का मतलब है जलेम, हिब्रू वर्ड, जिसका मतलब है आप एक दरिया के किनारे खड़े हो और बिल्कुल साफ पानी है दरिया का, आप उस दरिया के पानी में अपनी परछाई देखते हो। परमेश्वर ने अपनी परछाई पे आपको और मुझे बनाया, हमारे आदि पिता आदम को और हमारी आदि माता हवा को बनाया। जलेम का मतलब टू कास्ट योर रिफ्लेक्शन, टू कास्ट योर शैडो। और डिमूथ का मतलब क्या है? आपको मालूम? इमेज का मतलब है इंटरनली, अंदर से हमें अपने जैसा बनाया, और डिमूथ का मतलब है अपने जैसे काम करने की कुदरत हमें बख्शी। इंटरनली एंड एक्सटर्नली ही क्रिएटेड अस लाइक हिम। They already had all things that pertain to life and godliness. वचन में लिखा उसने हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं जिसके द्वारा हम उस सड़ांध से जो पाप के कारण जगत में है, करप्शन दैट इज इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ सिन, वी कैन एस्केप दैट। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीन पाप हैं। और ये तीन ही हवा को उसने देखा, आंखों से देखा और उसने डिजायर किया, और प्राइड ऑफ लाइफ उसके अंदर आया। आंखों से देखा, गुड, वेरी गुड, डिजायरेबल टू मेक वन वाइज, खाने के लिए भला, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड पैदा हुआ। सेटन ने, मैंने आपको बताया, एक अलग रियलिटी कास्ट कर दी। हालेलुया। एंड ही प्लेड विद द माइंड, हवा के माइंड से खेला, जबकि वो पहले ही परमेश्वर की शक्ल में थे, परमेश्वर की सूरत में थे। उसने क्या लिखा है? पतरस अपनी पत्री में कहता है कि ही हैज गिवन अस ऑल थिंग्स दैट परटेन टू लाइफ एंड गॉडलीनेस। परमेश्वर ने हमें वो सब कुछ दिया है जो जीवन जीने के लिए, भक्तिपूर्ण, धार्मिकता से भरा जीवन जीने के लिए हमें आवश्यक है, वो परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। आपको मालूम आखिरी आदम यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है? प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में बड़ी खास बात लिखता है। वो लिखता है पहला आदम जमीन से है, मिट्टी का है, नाशवान है। फर्स्ट एडम इज फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द सॉइल एंड इज पेरिशेबल। लेकिन आखिरी आदम इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन। लास्ट एडम, द सेकेंड एडम इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन। वो स्वर्ग से आया प्रभु है।
आखिरी आदम। स्वर्ग से आया प्रभु है। वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा ही न्यू नो सिन। उसको पाप का ज्ञान नहीं था। हवा और एडम को पाप का ज्ञान आया, एक्सपीरियंशली आना था, फल खा के, अनुभूति से। शैतान चाहता था ये अनुभूति से पाप का ज्ञान ले, जो प्रभु नहीं चाहता था वो ले। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है? यीशु मसीह के विषय में लिखा ही न्यू नो सिन। पाप क्या है? यीशु मसीह को, एक ही ऐसा व्यक्ति इस धरा पे आया जिसको मालूम नहीं नफरत क्या होती है, जिसको मालूम नहीं व्यभिचार क्या होता है, जिसको मालूम नहीं किसी को लूटना ठगी करना क्या होता है, जिसको मालूम नहीं नफरत करना क्या होता है, जिसको मालूम नहीं कि शरीर की लीला क्रीड़ा, शारीरिक काम क्या होते हैं। यीशु मसीह को मालूम नहीं था। ही न्यू नो सिन। वो पाप से अज्ञात था। तो यहोवा परमेश्वर ने उसको आपके और मेरे लिए, वो पापी नहीं बना। पास्टर अनसमल जी ने गीत लिखा था, उन्होंने पहले लिख दिया था तेरे मेरे पाप की खातर यीशु पापी बना। तो मैंने उन्हें यूएस में बोला था कि यह सही नहीं है। यीशु मसीह पापी नहीं बना, यीशु मसीह पाप बना। यदि यीशु मसीह पापी बन गया तो हमारे लिए कोई मुक्ति का दरवाजा नहीं, सब बंद। हमारा मोक्ष, हमारा उद्धार, हमारा निर्वाण, हमारा छुटकारा, हमारी चंगाई सब समाप्त अगर यीशु मसीह पापी बन गया। यीशु मसीह पाप बना। यहोवा ने आपका, मेरा, पूरी मानव जाति का, पीढ़ी दर पीढ़ी का, जितनी पीढ़ियां पैदा हुई आदम से लेकर अब तक, और जितनी पीढ़ियां पैदा होंगी यीशु मसीह के आगमन तक, सबका पाप यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और वो पाप वाही बना आपके और मेरे लिए। पाप बना, पापी नहीं। हालेलुया। शैतान हवा को यह बता रहा था कि कोई बढ़िया चीज है जो परमेश्वर ने तुम्हारे से छिपा के रखी है, वो तुम्हें देना नहीं चाहता। ये इंसिनुएट कर रहा था हवा के कानों में, ये बातें डाल रहा था, ताकि क्या कर रहा था कि हवा परमेश्वर के खिलाफ बिटर हो जाए। शैतान हालात, परिस्थितियां पैदा करता है आपके और हमारे जीवन में। मैं अपने जीवन में देखता हूं, आपके जीवन में ऐसे हालात और परिस्थितियां पैदा करता है। He wants you to be alienated from God, that you do not sense the goodness of God, that you do not sense that loving presence of God. He tries to make God so distant from you, that God is not interested in your life, that God is not paying heed to your cries, that God is not at all interested in the daily struggle that you are going through. That is what the devil wants you to feel. He wants you to become alienated. He wants you to turn bitter on the inside. He wants you to become discouraged. He wants you to feel that God is not interested in your life. He is such a big God. This world is so huge. The universes, there are multi-universes, and God is so humongous. Who cares about you? You are such a small, insignificant creature. Hallelujah. Satan है बी रूट ऑफ बिटरनेस। इसलिए परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है कि तुम्हारे अंदर कोई रूट ना हो बिटरनेस की। Hebrews चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 14 क्या कहता है? लेट देयर बी नो रूट ऑफ बिटरनेस। कड़वाहट की कोई जड़ ना फूटे तुम्हारे अंदर। तो भाई और बहनों, कड़वाहट मत पनपने दें। मेरे जीवन के संग मैंने बहुत सारे सेवकों को खड़ा किया जिन्होंने मुझे पीछे से लात मारी। यीशु मसीह कहता है जिसने मेरे संग थाली में खाया उसने मुझे पीछे से लात मारी है। मुझे चूमा कईयों ने, पकड़वाने के लिए यीशु मसीह कहता तुमने मुझे चूमा है। बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, एक सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, आपको सीढ़ी बना के इस्तेमाल करते हैं। ऊपर चले जाते हैं, फिर वो सोचते हैं अब सीढ़ी की क्या जरूरत है, सीढ़ी को फेंक देते हैं। बहुत सारे पास्टर, सेवक, प्रभु ने मुझे मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया उनका जीवन बनाने के लिए।
उन्हें बाइबल कॉलेज में भेजा, BTH करने के लिए, BD करने के लिए, MTech करने के लिए, पैसा लगाया, पूरा अपने घर में रखा, अपनी इमोशन, अपनी भावनाएं, अपना प्रेम, अपनी एहसास उनके अंदर बोए, एक नहीं कई। शैतान क्या चाहता है? आप उन्हें याद करके बिटर हो जाएं, यह चाहता है। और परमेश्वर की गुडनेस के ऊपर, परमेश्वर की गुडनेस पे कभी डाउट मत करें। गॉड इज गुड all the time, and all the time God is good. No matter what kind of trial you are going through, no matter what kind of situation you are in, no matter what challenges the enemy is throwing against you, always remember God is good. और भाइयों और बहनों, जब आप लोगों के जीवन में भलाई बोते हो, मैंने बहुतेरों के जीवन में बोई, बहुत सारी जगह पास्टरों की सहायता की, ज़मीन खरीदने के लिए, चर्च बनाने के लिए चर्चेस बनाई, उनको घर बना के दिए, बाइक्स बना के दिए, कईयों के बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा दिया। दे ऑल, मैनी बिट्रे यू, दे यूज यू एंड थ्रो यू। तो क्या है? क्यों ऐसा करता है शैतान? ताकि आप आगे से किसी के लिए भलाई मत करो, किसी गरीब की सहायता मत करो पढ़ने के लिए, किसी गरीब पास्टर की बेटियों के लिए, उनके लिए एजुकेशन के द्वार मत खोलो, गरीब अनाथ बच्चों के लिए आप भलाई मत करो, विधवाओं की सुधि। मैं ये काम करता हूँ, अनाथ की, विधवाओं की, गरीबों की, लाचारों की, परदेशियों की, भीख मांगने वालों की, उन लोगों के पीछे जाता हूँ। एंड आई सो एवरीथिंग इनटू देम, नॉट ओनली मनी, एवरीथिंग। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, मैं आपको बता के बंद करूंगा। कोई एक व्यक्ति था, सज्जन व्यक्ति, वो दरिया में नहा रहा था, बड़े तेजी से पानी बहता आ रहा था। उसने देखा कि पानी के करंट में एक बिच्छू है जो पानी में डूब रहा है। तो वो जो सज्जन व्यक्ति था, दयालु था, वो आगे बढ़ा, उसने बिच्छू को ऐसे डूबते पानी में से अंदर जाते हुए पकड़ लिया, पकड़ के उसको अपने हाथ पे रखा और दरिया के किनारे की ओर जाने लगा ताकि बिच्छू को वहाँ छोड़ दे। तो जब वो दरिया के किनारे जा रहा था, बिच्छू ने उसे डंक मारा हाथ में, हथेली में। उसका हाथ हिल गया, बिच्छू फिर गिर गया, उसके हाथ में से थोड़ा सा खून भी निकला। उस व्यक्ति ने फिर देखा बिच्छू को, वो फिर पानी में डूबने लगा। उसने फिर उसे उठाया, फिर अपनी हथेली पे रखा, फिर जाने लगा, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर वो गिर गया। अब जब तीसरी बार वो बिच्छू को उठाने जा रहा है, तो दरिया के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है। वो उससे कहता है, भाई मैं आपको देख रहा हूं, आपने 2-3 बार इस बिच्छू को उठाया पानी में से, लेकिन ये बिच्छू आपको डंक मारता है। आप इसकी भलाई करते हैं, ये आपको भलाई के बदले में बुराई दे रहा है। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? छोड़ दो इसे, मरने दो पानी में। इसका चरित्र और स्वभाव ही कुटिल है और दुष्टता से भरा है। वो व्यक्ति फिर बिच्छू को उठाता है और इस बार बड़ी तेजी से लपक के बिच्छू को किनारे पे फेंक देता है। उस व्यक्ति को आपको मालूम वो क्या जवाब देता है? उस व्यक्ति को जवाब देता है कि ये जो बिच्छू है, इसका जो स्वभाव है वो डंक मारना है। इसकी नेचर है डंक मारना। ये एक छोटा सा तुच्छ सा प्राणी है, छोटा सा क्रीचर है। ये अपने डंक मारने की आदत को, स्वभाव को, चरित्र को, नेचर को छोड़ नहीं रहा है, डंक मार ही रहा है। तो मैं तो परमेश्वर की सूरत में बनाया गया मनुष्य हूं। मैं अपनी करुणा की, दया की, भलाई की और प्रेम की फितरत क्यों छोड़ दूं? मैं अपना चरित्र दयावान होने का, करुणा दिखाने का, प्रेम दिखाने का, कंपैशन का क्यों छोड़ दूं? शैतान बिटर बनाएगा, आपको बनना नहीं है। हर उस ख्याल को, उस इमेजिनेशन को, उस विचार को जो परमेश्वर के कलाम के संग मेल नहीं खाता है, प्रतिदिन उसके संग युद्ध करें और उसे गुलाम बना के लाएं यीशु मसीह का, और अपने आप को भरें इससे, इन वचनों से, जीवित वाणी से, और मसीह की तरह सोचें प्रतिदिन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। सबको जय यीशु मसीह की।